ನನ್ನ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವನು. ಹೌದೌದು ನಿಜ, ಹೌದೌದು ನಿಜ, ಹೌದೌದು ನಿಜ. ಸತ್ವೇದ ಮಾತಿದು ಆತನನ್ನು ಸಹ ಸ್ನೇಹಿಸುವೆನು ಸದಾ. ಯೇಸುವಾತ ನನ್ನನ್ನು ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೇರಿಸುವನು. ಹೌದೌದು ನಿಜ, ಹೌದೌದು ನಿಜ, ಹೌದೌದು ನಿಜ. ಸತ್ವೇದ ಮಾತಿದು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಉತ್ತರ ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರ ಓದಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಕೀರ್ತನೆಗಳು 101 वचन ओदिಕೊಳ್ಳೋಣ. भजन से का उसका 100 से 5 हम रेस्पॉन्सिव रीडिंग करेंगे. साम 100 ಕೊನೆಯ ವಚನ ನಾವೆಲ್ಲರ ಜೊತೆ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಓದಿಕೊಳ್ಳೋಣ. भजन से का 100. वे सारे पृथ्वी के लोगों, यहोवा को जय जयकार करो. निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है, उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं. हम उसकी प्रजा और हम उसकी चराई के बेटे हैं. उसकी ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಾಗಿ बोलोना. क्योंकि यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा के लिए और उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है. हाँ, इस ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂತಿಕೊಳ್ಳಿ. सब बैठ जाए. आए प्रार्थना करें. ಸಮಸ್ತ ಭೂನಿವಾಸಿಗಳೇ, ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಜಯಘೋಷವಾಗಲಿ. ಯೆಹೋವನನ್ನು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಸೇವಿಸಿರಿ, ಉತ್ಸಾಹವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಆತನ ಸನ್ನಿಧಿಗೆ ಬನ್ನಿರಿ. ಯೆಹೋವನೇ ದೇವರನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿರಿ. ನಮ್ಮನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿದವನು ಆತನೇ, ನಾವು ಆತನವು, ಆತನ ಪ್ರಜೆಯು, ಆತನ ಪಾಲಿಸುವು ಇಂದು ಆಗಿದ್ದೇವೆ. ಕೃತಜ್ಞತಾ ಸ್ತುತಿಯೊಡನೆ ಆತನ ಮಂದಿರ ದ್ವಾರಗಳಿಗೂ, ಕೀರ್ತನೆಯೊಡನೆ ಆತನ ಅಂಗಗಳಿಗೂ ಬನ್ನಿರಿ. ಆತನ ಉಪಕಾರ ಸ್ಮರಿಸಿರಿ, ಆತನ ನಾಮವನ್ನು ಕೊಂಡಾಡಿರಿ. ಯೆಹೋವನು ಒಳ್ಳೆಯವನು, ಆತನ ಕೃಪೆ ಯುಗ ಯುಗಕ್ಕೂ, ಆತನ ಸತ್ಯತೆಯು ತಲಾಂತರಕ್ಕೂ ಎಂಬುದು. ನಮ್ಮ ಕರ್ತನಾದ ಸ್ವಾಮಿ, ಮುಂಜಾನೆ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ನಿಮ್ಮ ಪಾದಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ ಅಪ್ಪ. ಹೌದು ರಾಜ, ಈ ಮುಂಜಾನೆ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಸ್ತೋತ್ರ ಹೇಳುತ್ತೇವೆ. ಈ ಆಲಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸ್ವಾಮಿ ಇದುವರೆಗೆ ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲರೂ ನಡೆಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಹೇಳುತ್ತೇವೆ. ಹೌದು ರಾಜ, ಆಗುವುದೆಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಸ್ವಾಮಿ ಈ ಆಲಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ನಿಮ್ಮ ನಾಮಕ್ಕೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಹೇಳುತ್ತೇವೆ ಅಪ್ಪ. ಇಂದ ಮುಂದಿನ ಆಗುವ ಎಲ್ಲ ವಿಬೇಸ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ಗಳನ್ನು ಸ್ವಾಮಿ ನಮ್ಮ ಸಂಘಟನೆ ಇದ್ದು ಸ್ವಾಮಿ ಈ ಆಲಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮಕ್ಕಳು ಬರುವಾಗ ಸ್ವಾಮಿ, ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸ್ವಾಮಿ ಬೆಳುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಸಹಾಯ ಮಾಡು ಸ್ವಾಮಿ. ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಡೇವಿಡಗೋಸ್ಕರ, ಕುಟುಂಬಗೋಸ್ಕರ ಸ್ವಾಮಿ ಅವರ ಸೇವೆಯನ್ನು ಆಶೀರ್ವಾದಿಸು ಸ್ವಾಮಿ. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾರೋ ಸ್ವಾಮಿ ಅವರಿಂದಲೇ ಸ್ವಾಮಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸ್ವಾಮಿ ಮಂದಿರ ಸ್ವಾಮಿ ಈ ಆಲಯಕ್ಕೆ ಬರಲಾಕ ಅವರು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡು ಸ್ವಾಮಿ. ಅವರನ್ನು ಆಶೀರ್ವಾದಿಸು, ಇನ್ನು ಅವ್ರ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಆಶೀರ್ವಾದಿಸು ಸ್ವಾಮಿ. ಆಲಯ ಬರುವಾಗ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಸ್ವಾಮಿ ನೀನು ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ನೀನು ಆಶೀರ್ವಾದಿಸಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಸ್ತೋತ್ರ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. ಹೌದು ರಾಜ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಗುವ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಸ್ವಾಮಿ ಸ್ವಾಮಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ವನಸ್ತ್ರ ಕೂಟಗಳು ಸ್ವಾಮಿ ಅವರನ್ನು ಆಶೀರ್ವಾದಿಸು ಸ್ವಾಮಿ. ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸ್ವಾಮಿ ನಿನ್ನ ಸೇವೆಗೋಸ್ಕರ ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸ್ವಾಮಿ ನಿನ್ನ ವಚನಗಳಿಂದ ಸ್ವಾಮಿ ಅವರನ್ನು ತುಂಬಿಸು. ಇನ್ನು ಏನು ಸ್ವಾಮಿ ಅವನ ಅಗತ್ಯ ಉಂಟು ಸ್ವಾಮಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಒದಗಿಸಬೇಕಾಗಿ ನಾನು ಕೇಳಿಕೊಳ್ತೇನೆ. ಈ ಸಮಯ ನಿನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ನಜರೇತಿನ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ಬೇಡಿಕೊಳ್ತೇನೆ ಸ್ವಾಮಿ, ಆಮೇಲೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಚನವನ್ನು ಓದಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಅಪೊಸ್ತಲರ ಕೃತ್ಯಗಳು 2ನೇ ಸಂಧಿ
43 ವಚನದಿಂದ 47 ವಚನ. प्रेरितों के काम उसका दूसरा अध्याय 43 वचन से लेकर 47 वचन तक हम देखेंगे. Acts chapter 2 verse 43 to 47. Acts chapter 2 verse 43 to 47. और सब लोग पर भय छा गया और बहुत से अद्भुत काम और चिन्ह प्रेरितों के द्वारा प्रकट होते थे और सब विश्वास करने वाले इकट्ठा रहते थे और उनके सब वस्तुएं साझे में थी. वे अपनी अपनी संपत्ति और सामान बेच बेच कर जैसे जिसकी आवश्यकता होती थी बांट दिया करते थे. वे प्रतिदिन एक मन होकर मंदिर में इकट्ठा होते थे और घर घर रोटी तोड़ते हुए आनंद और मन की सीधाई से भोजन किया करते थे और परमेश्वर की स्तुति करते थे और सब लोग उनसे प्रसन्न थे और जो कर पाते थे उनको प्रभु प्रतिदिन उन्हें मिला देता था. परमेश्वर वचन से आशीषित करे. इस ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ರಾಗವನ್ನು ಹಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ यवनस्थर इधर है और रागವನ್ನು हाड़ಬೇಕಾಗಿ हम ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. इस समय में हम प्रेज एंड वर्शिप की ओर जाएंगे. हमारे बीच में हमारे जवान हैं जो हमें इस आराधना में अगुवाई करेंगे. हालेलुया. एनर्जी नहीं आप लोग के पास में, एनर्जी लाए एक्टिव साथ करना. हालेलुया. फिर से एक बार बोलेंगे हालेलुया. ओके, अब हम मैं रिक्वेस्ट करता हूँ सभी से कि प्रेज एंड वर्शिप के लिए हम खड़े हो जाएंगे. जिसके पैरों में तकलीफ है वो बैठ सकता है, लेकिन प्रभु की स्तुति आराधना के लिए मैं मानता हूँ कि नाचते हुए गाते हुए प्रभु की स्तुति आराधना करना चाहिए. कौन कौन मानता है कि हमें गाते हुए और नाचते हुए प्रभु की स्तुति आराधना करना चाहिए? कौन मानता है? कौन मानता है? आप लोग नहीं मानते कि हमें नाचते हुए और गाते हुए प्रभु की स्तुति आराधना करनी चाहिए, राइट? कौन कौन मानता है? हाथ उठाएंगे एक बार. आप लोग नाचते नहीं होते, ठीक है? तो पहला गीत हम लेंगे बिन तेरे में कुछ भी नहीं, पेज नंबर 212, सॉन्ग नंबर 172. ये गीत में हमें नाचना है, ठीक है? मैं देखूंगा अभी जिसने जिसने हाथ उठाया नाचता है क्या. बिन तेरे मैं कुछ भी नहीं, बिन तेरे मैं कुछ भी नहीं, यहोवा मुझे तेरी जरूरत है, यहोवा मुझे तेरी जरूरत है. प्यार तू करता इतना, प्यार तू करता इतना, अपने हाथों से मुझ में सूरत है, यहोवा मुझे तेरी जरूरत है, यहोवा मुझे तेरी जरूरत है. तू मेरे चेहरे की रौनक और है मेरी कुव्वत, तू मेरे चेहरे की रौनक और है मेरी कुव्वत. अजमत और जलाल के बाद शब्द से मेरी जीनत, अजमत और जलाल के बाद मुझसे मेरी जीनत. तेरे बिना ये जिंदगी में, तेरे बिना ये जिंदगी में बेरौनक बेसूरत है, यहोवा मुझे तेरी जरूरत है, यहोवा मुझे तेरी जरूरत है. तेरा कलाम है जैसे होठ बोल मोती, तेरा कलाम जैसे होठ बोल मोती, ये चराग है कदमों के लिए और मेरी राहों की ज्योति,
ठीक है, आज इन्होंने नाचा, आप लोग नहीं नाचे, ठीक है, मैं देख रहा हूँ। ओके, नेक्स्ट सॉन्ग हम लेंगे ए मसीह तेरे बिना जिंदगी में है ना कोई। आप लोग खुश हो? बिना मसीह के खुश हो आप लोग? आप लोग बिना मसीह के खुश हो? आवाज नहीं आ रहा, बोलो नहीं। हाँ कि नहीं? देखो आवाज आ रहा है नहीं। आप लोगों को बोलना है कि आप लोग खुश नहीं है। तो इस गीत को गाकर हम बताएंगे हे मसीह तेरे बिना जिंदगी में है ना कोई। नहीं, आप लोग बोल नहीं रहे हो। तेरे बिना जिंदगी में है ना कोई खुशी, ठीक है। हे मसीह तेरे बिना जिंदगी में है ना कोई खुशी। ताली बजाते हुए गाएंगे हे मसीह तेरे बिना जिंदगी में है ना कोई खुशी। तू आ मेरे पे समाना, तेरे बिना जिंदगी है खुशी। तू आ मेरे पे समाना, तेरे बिना जिंदगी है खुशी।
मैं रिक्वेस्ट करता सकती हूँ कि अपने वीडियो भेजिए। बैठे जगह में हम प्रभु की आराधना करेंगे, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ अपने आंखों को बंद करेंगे और ध्यान में जाएंगे, प्रभु की आराधना करेंगे, संगीत को गाकर हम प्रभु की आराधना करेंगे। धन्यवाद करेंगे उसने हमें इतना सुंदर से समय दिया। हमारे सारे जो भी कष्ट, जो भी प्रॉब्लम्स, जो भी चीज़ें वो उसने अपने हाथों में उठाया और छुटकारा दिया उन चीज़ों से, इसलिए हम उसका धन्यवाद करेंगे। अपने आंखों को बंद कर स्वर की तरफ ध्यान लगाएंगे। धन्यवाद 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 करेंगे।
फिर से एक बार धन्यवाद करते हैं। फिर से एक बार बोलेंगे। सर्वशक्तिमान प्रभु जी पिता, आराधना के योग्य है प्रभु जी। आप हमारे बीच में मध्य में होकर हमें अगुवाई करने वाले प्रभु जी नाम को धन्यवाद करते हैं। हमारे सारे चिंताओं को पिता आपके ऊपर के लिए आपको धन्यवाद करते हैं जी। आज के इस दिन में पिता हम सुरक्षित को पाते हैं प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद करते हैं जी पिता। हमारे सारे पिता कर्तव्य को पिता आपने पूरा किया, आपको धन्यवाद करते हैं जी पिता। आज के इस वचन से पिता में नई बातें पिता सिखाएंगे, विश्वास करते हैं प्रभु जी पिता। हम सभी को हमारे मनों को पिता तैयार कर प्रभु जी पिता, हमारे मनों को द्वार को पिता खोले प्रभु जी पिता। आपने ऐसा क्या आपका धन्यवाद करते हैं, सारी महिमा गौरव आप ही को देते हैं यीशु मसीह के नाम से मां को समर्पित करते हैं। ಇವತ್ತು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ವಚನಗಳನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅಪೊಸ್ತಲ ಕೃತ್ಯಗಳು 2ನೇ ಸಂಧಿ 43ರಿಂದ 47 ವಚನ ಓದಿದ್ದೇವೆ। ಇದರೊಳಗೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ इस समय इसमें हम जब देखते हैं इसमें कलीसिया की एक नई, अगर पूरे अध्याय को अगर हम देखेंगे, पहला जो है पेंटिकोस्ट का पवित्र आत्मा के बारे में बात करती है, जहाँ पर पवित्र आत्मा उतर कर आता है। फिर दूसरे इसमें हम जब अध्याय उसके अध्याय में देखते हैं 3 बातें हैं, तो दूसरे में वहां पर पत्रस परमेश्वर की बातों को बताता है। फिर उसके आगे हम देखते हैं वहां पर लोग इकट्ठा होकर परमेश्वर की आराधना करते हैं करके हम देखते हैं। तो चर्च का जो वर्ड है या फिर हम चर्च जो कहते हैं वो कहां से शुरू हुआ या फिर कहां से स्थापित हुआ करके हम देखने जाएंगे। ग्रीक वर्ड में एक्लेशिया करके कहा जाता है। एक्लेशिया का मतलब बुलाया जाना या फिर कॉल आउट, गैदर करके कहा जाता है। उसको चर्च के इसमें हम लोग कहते हैं, जहां पर हम लोग इकट्ठा हुए परमेश्वर की आराधना करने के लिए। जो शब्द को हम चर्च करके यूज करते हैं, कलीसिया करके यूज करते हैं, वो ग्रीक शब्द से आया करके हम देखते हैं। जहां पर हम सब इकट्ठा होकर परमेश्वर की आराधना करते हैं, उसकी महिमा करते हैं, उसके वचनों को सुनते हैं, उस सारे बात का पर चर्च में आता है करके हम देखते हैं। तो जो वचन को हम पढ़े वो कहां से शुरू हुआ और ऐसा कौन सा समय था करके हम देखेंगे। तो कन्नड़ा में हम देखते हैं पंचशतमाद दिनादि करके हम सुनते हैं, या फिर हिंदी में देखते पेंटिकोस्ट के दिन के समय में पेंटिकोस्ट डे करके हम सुनते हैं। वो कौन सा दिन था अगर हम सुनेंगे, वो यरूशलेम में एक ऐसा फीस्ट था जो एक ऐसा लोग सेलिब्रेट करते थे फेस्टिवल, जो केवल ज्यूइश लोग, यहूदी लोग सेलिब्रेट करते थे करके हम देखते हैं। या फिर उस त्योहार को केवल यहूदी लोग मनाते थे करके हम देखते हैं। वो लोग मनाते समय में, उस समय में अलग अलग जो बाहर के जो देश के लोग थे, राज्य के लोग थे, वहां पर आते थे करके हम देखते हैं। क्यों आते थे? क्योंकि उस समय यहूदी लोग के लिए सबसे बड़ा त्योहार वही था करके हम देखते हैं। उस त्योहार को मनाते समय में, उस समय में एक ऐसा परिवर्तन हो गया, ऐसा परमेश्वर का पवित्र आत्मा उतर कर आया। जो फीस्ट, जो त्योहार को लोग मनाते थे, वो एक मीनिंगफुल और फ्रूटफुल बना करके हम देखते हैं। कब हुआ? वो पवित्र आत्मा उतरने के द्वारा करके हुआ करके हम देखते हैं। उससे तब हम देखते हैं कि पेंटिकोस्ट डे करके हम मनाते हैं, या फिर पवित्र आत्मा उतरने का समय या फिर दिन को हम देखते हैं वहां पर। लेकिन जब हम इस बातों को देखते हैं, जो कलीसिया उस समय में बांधी गई थी या फिर शुरू हुई थी करके हम देखते हैं, ये तब की बात है जब यीशु मसीह मरकर पुनरुत्थान हुए, तब की बात है। उसके बाद लोग अपने इकट्ठा होकर जब आराधना करते थे, कलीसिया का स्थापित हुआ करके हम देखते हैं। लेकिन उस समय में कलीसिया कैसी थी और आज की कलीसिया कैसे, अगर हम सोचने जाए या फिर सुनने जाए कि जो हम प्रेरितों के काम में हम कलीसिया को देखते हैं, जो मॉडर्न चर्च को हम देखते हैं, वो दोनों अलग है करके हम देखते हैं। कैसे अलग है करके हम देखते जाएंगे। मैं पहले तक एक्ट्स में जो प्रेरितों के काम में जिस तरह से कलीसिया का वर्णन किया गया है, मैं वो आप लोगों को बताना चाहता हूं। इट वाज अ चर्च वाज फिल्ड विद द होली स्पिरिट करके हम कहते हैं। जो कलीसिया था वो पवित्र आत्मा से भरा हुआ था करके हम देखते हैं। जहां पर भी उनकी
इकट्ठा होते थे, जरूरी नहीं कि जैसा स्ट्रक्चर आज हम कलीसिया का देख रहे हैं वो पहले नहीं था, बस केवल एक घर के समान था। वहां पर सभी लोग इकट्ठा होते थे उस कलीसिया में और वहां पर पवित्र आत्मा उतर कर आता था करके हम देखते हैं। और आगे बात क्या कहता है कि वहां पर उन लोग क्या करते थे, सुसमाचार को बांटते थे करके हम देखते हैं। उस कलीसिया के समय में पहला हमने देखा कि पवित्र आत्मा उतर कर आया। दूसरा बात को ये देखते हैं कि वहां पर लोग सुसमाचार को बांटते थे, सुवार्ते के अनुसार था इधर। फिर उसके बाद में हम देखते हैं कि वो लोग बहुत एक्साइटमेंट थे, उत्साह थे। क्यों थे? क्योंकि उस समय में उससे पहले यीशु मसीह के पुनरुत्थान से पहले किसी ने भी यीशु मसीह को अपना सेवक या फिर उद्धारकर्ता के रूप में नहीं स्वीकारा था। लेकिन जिस दिन पुनरुत्थान होने के बाद यीशु मसीह को जो भी लोग जाने थे, पहचाने थे, सभी लोग ने उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकारा करके हम देखते हैं। फिर उसके आगे क्या कहते हैं, अपने आप ने जीवन को समर्पित किया या फिर कमिट किया करके हम देखते हैं। कौन सी बातों में कमिट किया? उस बातों को देखने से हम अपने जीवन को परिशुद्ध, एक ऐसे जीवन में, होली लाइफ, पवित्र जीवन में बिताने लगे करके हम देखते हैं। परमेश्वर की बातों को मानने लगे करके हम देखते हैं। केवल परमेश्वर की आराधना करने लगे करके हम देखते हैं। फिर उसमें क्या हो गया करके हम देखते हैं, वहां के लोग सताए जाने लगे, लोग से नफरत करने लगे। लेकिन के सारे कुछ होने के बाद भी वो लोग अपने विश्वास में दृढ़ थे करके हम देखते हैं। दे वर फेथफुल करके हम देखते हैं। इतने सारे परेशानी शुरू होने के बाद भी दे वर फेथफुल इन देयर लाइफ करके हम देखते हैं। फिर उसमें क्या होता है करके, जैसा चर्च बढ़ते गया, लोग उन्नति से आने लगे करके हम देखते हैं। आज हम जो कलीसिया देखते हैं, लोग खाली होते जा रहे हैं, फिर नहीं आ रहे करके हम देखते हैं। उस समय में 3000 लोग एक साथ परिवर्तन पाए, 5000 लोग परिवर्तन को पाए। आज के समय में हम क्यों नहीं देखते उस सारे परिवर्तन को? क्यों आज उस कलीसिया में हम नहीं पाते? क्यों लोग हम उस उद्धार को नहीं पा सकते या फिर नहीं देखते करके हम देखने जाए तो उस तरह से हम देखते हैं कि हमें आगे बताती है कि उस समय की कलीसिया यूनाइटेड थे करके हम देखते हैं, एक होकर चलती थी करके हम देखते हैं। कोई भी बातें रहने दो, कौन से भी चैलेंजेस होने दो, कोई भी तकलीफ आने दो, ये कलीसिया की होने दो या फिर हमारे चर्च के मेंबर्स के होने दो, या की होने दो, वो लोग एक मन होकर, एकजुट होकर उसके लिए लड़ते थे या फिर उसके लिए प्रार्थना करते थे करके हम देखते हैं। फिर दूसरी बात इस तरह से बताते हैं, दे वर कमिटेड, बादवादी करो किसमें, वो लोग साथ में आराधना करते थे, परमेश्वर की साथ में सेवा करते थे करके हम देखते हैं। फिर उसमें देखते हैं कि स्टीफन का जो डेथ हुआ, स्टीफन जिस तरह से मारा गया, उसने सताए जाने के कारण, क्योंकि जो सुसमाचार को उसने बांट रहा था, उसके विश्वास में जो बताया था, लोगों ने वो देखा और उसे मार डाला करके हम देखते हैं। जो यूहन्ना और पतरस का वचन देखिए, वो लोग पकड़े गए, उसे मारा गया। क्यों? क्योंकि जो लोग प्रचार को कर रहे थे, लोग नहीं स्वीकार रहे थे या फिर उसे गलत बात बताकर इतने सारे लोग प्रॉब्लम्स में थे या फिर सताए गए करके हम देखते हैं। ये सारी बात क्या पर लिखा है देखते हैं तो केवल हम बुक के आधार पे नहीं पढ़ते हैं। यहाँ पर एक्ट्स चैप्टर 8 1 to 3, एक्ट्स चैप्टर 9 वर्स 1 to 2, यहाँ पर सारे बातों को लिया है। जिन्होंने भी परमेश्वर की सुसमाचार को लेकर चला, उन सारे लोगों ने सताव को देखा, उन लोगों ने नफरत को देखा, द्वेष को देखा और जेल में गए, मारे गए करके अलग अलग रीति से करके हम देखते हैं। उस समय की कलीसिया पावरफुल थी, शक्ति युक्त करके हम देखते हैं। वैसे पावरफुल था करके हम देखते जाएंगे। वो लोग डेली बेसिस पे वो लोग चर्च में मिलते थे या फिर डेली हर दिन प्रतिदिन वो लोग घर पर मिलकर परमेश्वर की आराधना करते थे। हम केवल संडे मिलते हैं क्योंकि हम अपने जीवन में अलग अलग रीति से हम बिजी है, इसलिए हम शायद नहीं मिल पाते होंगे। ये मॉडर्न कलीसिया हो चुका है कि हम केवल परमेश्वर की आराधना संडे करना चाहिए, ना कि बल्कि 6 दिन के इसमें। लेकिन यहाँ पर बताते हैं कि वो लोग प्रतिदिन मिलकर परमेश्वर की आराधना करते थे। क्या फिर उन्हें कुछ काम नहीं था या फिर वे लोग सिर्फ घर पे परमेश्वर की आराधना करते थे? नहीं, अपने सारे काम करने के बाद वो लोग इकट्ठा होकर एक समय में परमेश्वर की आराधना करते थे। और उस समय में जो मिरेकल्स आज हम विटनेस नहीं कर पा रहे हैं या फिर हम नहीं देख पाते हैं क्योंकि हम उतने प्रार्थना पूर्वक नहीं है या फिर उतने हम लोग बाइबल में नहीं है करके हम देखते हैं। लेकिन उस समय में प्रतिदिन लोग मिरेकल्स को देखते थे, अद्भुत कार्य को देखते थे करके हम देखते हैं। लोग हीलिंग्स को देखते थे, वो लोग चंगाई को पाते थे करके हम देखते हैं। इन सारे स्पिरिचुअल पावर को, आत्मिक ज्ञान को लोग देखे, आत्मिक सामर्थ को देखे करके हम देखते हैं। ये सारे आत्मिक सामर्थ आज का विषय में क्यों नहीं है? इस सारे स्पिरिचुअल पावर कहां पर गया है? समय देखते समय में चर्च हमें बताती है कि उस समय में जो लोग सुसमाचार को बताते लोग आर्मी की तरह थे करके हम देखते हैं। वो लोग आर्मी की तरह क्यों थे? लोग ये सोच के जाते थे हम जब सुसमाचार को बांटेंगे शायद हम मारे जाएंगे, हम सताए जाएंगे। जैसे आर्मी अपने बॉर्डर्स पर रहकर सुरक्षा करता है, उन्हें पता है मारे भी जा सकते हैं, ये सोचकर वो लोग अपने सुसमाचार को लेके जाते थे करके हम देखते हैं। उस समय में जो कलीसिया थी वो भय में थी करके हम देखते हैं।
देखते हैं परमेश्वर की भय भक्ति में होकर चलती थी। अगर हम देखेंगे अननिया सफरिया का उसका कहानी को हम स्टोरी को सुनेंगे, वो लोग मारे गए क्यों? क्योंकि परमेश्वर के विरुद्ध में या फिर उन्होंने कुछ बातों को झूठ कहा, इसलिए वहां पर परमेश्वर का प्रकोप या फिर कोप उतरा करके हम देखते हैं। आज के समय में हमें परमेश्वर का भय नहीं होगा, हमें उससे डर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो हम करते हैं परमेश्वर से हम क्षमा मांग सकते हैं और उससे हम बच सकते हैं करके रिपेंट कर हम प्रार्थना करके उससे पश्चाताप पाकर हम फॉरगिवनेस पा सकते हैं करके हम सोचते हैं। लेकिन उस समय में जो भय परमेश्वर का लोगों में था, आज वो भय परमेश्वर के लोगों में नहीं है करके हम देखते हैं। मॉडर्न चर्च क्या बताती है करके हमें पता है, तो मॉडर्न चर्च हमें डिवाइड करती है करके हम देखते हैं। किस तरह से डिवाइड करती है? उस समय में कोई डिनोमिनेशंस, कोई अलग-अलग टीचिंग्स नहीं था करके हम देखते हैं। केवल उस समय में फरीसी, दो शास्त्री लोग पढ़ाते थे। उस समय में केवल वो लोग परमेश्वर के वचन को पढ़ते थे, ना कि कोई और पढ़ते थे करके हम देखते हैं। लेकिन मॉडर्न चर्च में अगर हम देखते समय में जो हम मॉडर्न चर्च में आज जी रहे हैं, इसमें क्या है? डिवाइडेड है करके हम अलग-अलग डिनोमिनेशंस में, मेथोडिस्ट में होंगे, सीएलआई में होंगे, मार्तोमा में होंगे, सीएसआई में होंगे, अलग-अलग डिनोमिनेशंस में होंगे। डॉक्ट्रिन्स क्या है? अलग-अलग टीचिंग्स है परमेश्वर के बारे में या फिर बाइबल के बारे में बताती है। ये सारा डॉक्ट्रिन्स हमें अलग-अलग रीति से बताता है। हमें मेथोडिस्ट कुछ बताया या फिर कोई और बताएगा, हम क्या करते हैं? हम लोग कंपेयर करने लगता है। लेकिन परमेश्वर बताता है वचन को जानो, वचन को पढ़ो और उसके आधारित पर आप चलो करके वचन हमें बताता है। आज की जो कलीसिया है मॉडर्न चर्च, वो अनकमिटेड या फिर नॉट कमिटेड करके कहता है। अपने कार्य को लेकर भी कमिटमेंट नहीं है, अपने चर्च को लेकर भी कमिटमेंट नहीं है। मैं सभी के लिए कहना चाहूंगा, हमारे जवान हो सकते हैं, हमारे सब कुछ हो सकते हैं, रीजंस बहुत है हमारे पास कमिटमेंट नहीं होने के लिए। क्यों? हम दूर रहते हैं, हमारे पास समय नहीं है, बिकॉज फॉर दैट थिंग हमारे पास सारा रीजन है करके वी आर नॉट कमिटेड करके। लेकिन जिस दिन हमारा कमिटमेंट परमेश्वर से जुड़ जाता है, जो हम बाधाएं ला रहे हैं, जो हमें अड़चन ला रही है, हम खुद होकर परमेश्वर की ओर से वो बाधाएं हट जाएगी करके हम देखते हैं। बट व्हाट इज इंपॉर्टेंट? योर कमिटमेंट करके कहता है। जो कमिटमेंट को जो आप परमेश्वर के साथ बांधोगे, परमेश्वर आपके साथ एक वाचा को बांधेगा करके हम देखता है, और वो वाचा आपके जीवन में आशीषदायक बनकर रहेगा करके हम देखते हैं। जब भी हम आगे देखते हैं, आज की कलीसिया एक मिलिटेरी या फिर आर्मी की तरह नहीं है करके हम, क्यों? क्योंकि हम सुसमाचार बांटने से बहुत डरते हैं करके हम देखते हैं। क्योंकि आज के समय में जो सरकार है, हमें सताव देने वाली सरकार है, या फिर हम तकलीफ में आ सकते हैं, इन सारे बातों को लेकर हम प्रचार करने को भी डरते हैं करके हम। इसलिए हम एक सीमित में है। अगर यूपी में वाराणसी में जहाँ पर मेरी वाइफ काम करती है, वहाँ पर एक कलीसिया में गया था, वहाँ पर पूरा बंद कर अपने दरवाजों को, अपनी खिड़कियों को, ना कि इंस्ट्रूमेंट भी नहीं बजाते हैं। क्यों? लोगों की डर की वजह से, क्योंकि आसपास के लोग एक चांस चाहते हैं ताकि उन्हें पकड़ने के लिए। इसीलिए लोग क्या करते हैं? चुपके से आराधना को करते हैं। ऐसा डर, ऐसा भय का माहौल हमारे जीवन में चल रहा है करके हम देखते हैं। परमेश्वर ने एक अवकाश दिया है इस समय में रहकर, जो खुले हम अच्छे से परमेश्वर की आराधना करते हैं, क्यों ना उसकी यूज हम अच्छी तरह से करें। फिर उसके बाद बताते हैं आज का जो कलीसिया है वो फियरलेस है करके, जो भय नहीं करके हम देखते हैं। क्यों भय नहीं है? मैं जिस तरह से कहा था, हम अक्सर परमेश्वर को क्षमा मांगते हैं, परमेश्वर हमें क्षमा कर देता है करके हम देखते हैं। अलग अलग रीति से परमेश्वर हमें बताता है। मैं 3 बातों को इस समय में आप लोगों के सामने रखना चाहूंगा। पहले बात इस तरह से बताता है, देवರ सभೆಯಲ್ಲಿ उपदेशವನ್ನು ಕೊಡುವುದು सरियादा संदेश हंचಬೇಕು। गॉड चर्च प्रीचेस द राइट मैसेज करके, परमेश्वर का जो कलीसिया है वो सही उपदेशों को या फिर वचनों को बांटना जरूरी है करके हम देखते हैं। कौन सा राइट मैसेज है? आप लोग अलग अलग टीवी में देखते होंगे, बहुत सारा प्रचार को सुनते होंगे, लेकिन केवल हर एक लोग आपको ब्लेसिंग्स, आप लोग ये देखो तो आपको ये ब्लेसिंग्स आएगा, केवल ब्लेसिंग्स के बारे में बात करेगा। बट यहाँ पर वचन जिस तरह से पतरस ने परमेश्वर लोगों के बारे में बात करता, वो कौन सी बातें थी या फिर कौन सी प्रचारों को किया करके हमें देखने जाएंगे। वो एक रक्षक, एक सेवियर, एक सिन और एक सैल्वेशन करके, जो रक्षक के बारे में, हमारे पाप के बारे में, उद्धारकर्ता के बारे में, इन सारे बातों को बता रहा था करके हम देखते हैं। हम ब्लेसिंग्स पे ज्यादा फोकस करते हैं। क्यों? ब्लेसिंग से हमारा जीवन में संतुष्टि आएगा। अगर हम संतुष्टि रहेंगे तो चर्च को हम दे पाएंगे करके, इसलिए हम लोग क्या करते हैं? ब्लेसिंग्स एंड फाइनेंस में देखना चाहते हैं, हमारे घर में संतुष्टि देखना चाहते हैं। बट यहाँ पर वचन बताता है वी हैव टू बी वेरी फैक्ट इन स्क्रिप्चर करके, जो वचन हमें मिलता है हमें उस तरह से एक्सेप्ट करना चाहिए जो परमेश्वर हमें बताता है। शुगर कोटेड या फिर मेल मिलाप, जो मीठी मीठी बातें आपको मिलती है, वो स्वीकार नहीं करना चाहिए करके हम देखते हैं। परमेश्वर जो हमसे बातें करता है वो जिस तरह से है वैसे हमें एक्सेप्ट करना बहुत जरूरी है करके हम देखते हैं। हम पहला कुरिन्थियों 1:18 वचन में हम देखते हैं, वहां पर कहता है
एक 18 उसमें कहता है क्योंकि क्रूस की कथा नशा होने वाले के लिए मूर्खता है, परंतु उद्धार पाने वाले के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। जो क्रूस की बात जिनके लिए मूर्खता है उनके लिए मूर्खता ही रहेगी, क्योंकि जो लोग उद्धार पाए, जैसा आप लोग पाए, मैंने पाया, जो उद्धार पाया, जो क्रूस की बात है वो सामर्थ की बात है, या फिर परमेश्वर की बात सामर्थ की बात है करके हम देखते हैं। इन सारे बात में क्या कहते हैं, जो लोगों ने उस समय में परमेश्वर की महसूस को, पवित्र आत्मा को महसूस किया था, उस समय में लोग आशीषित को पाए करके हम देखते हैं। दूसरा बात इस तरह से कहता है, गॉड चर्च इज मेड अप ऑफ राइट पीपल करके, ದೇವರ ಆಲಯವು ಸರಿಯಾದ ಜನರಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾಗಿದೆ। यहाँ पर जो लोग हम इकट्ठा हुए वो कैसे सही हो सकते हैं, जो लोग पवित्र आत्मा से, उससे पहले जो लोग यीशु मसीह में थे या फिर परमेश्वर के वचनों को जानते थे, उस समय में वो लोग थोड़ा अलग थे, लेकिन जैसा पवित्र आत्मा उनके ऊपर उतरा वे लोग अलग अलग बातें भी करने लगे पवित्र आत्मा की ओर से, और लोग आशीष को पाने लगे। जो विश्वास को लोग ने पहला रखा था, जो विश्वास पवित्र आत्मा के उतरने के बाद रखा, वो जेन्युइन था करके हम देखते हैं, वो सही था और असल में था करके हम देखते हैं। और जब वो लोग यीशु मसीह को फॉलो करने लगे करके हम देखते हैं, जो चर्च आज के समय में कौन से राइट पीपल हम देखें, गॉड चर्च इज मेड अप ऑफ राइट पीपल, जो सही लोगों से चर्च बना हुआ है। सही लोग कैसे हो सकते हैं, द मेंबर्स आर सेव्ड। सेव्ड अगर देखे जाएगा तो कैसे बचे हुए लोग हैं, जो आपका जीवन था अब वो जीवन नहीं है परमेश्वर में आने के बाद या फिर प्रभु यीशु मसीह में आने के बाद, दैट इज अ न्यू बर्थ, उसका जन्मना उड़ते हुए। दूसरा बात क्या बताती है उसमें, सेपरेटेड डॉक्ट्रिन्स के द्वारा, अलग टीचिंग्स के द्वारा हम लोग अलग हो सकते हैं, लेकिन पवित्र आत्मा आने के बाद जो पवित्र आत्मा में अगुवाई करती है वो हमें इकट्ठा करती है, फिर वो चलाते करके हम देखते हैं। फिर हम अपने विश्वास के द्वारा, वी आर स्टेडफास्ट, वी आर फेथफुल, नम्रता उल्लादे, हम लोग विश्वास के द्वारा परमेश्वर के संग होकर इस कलीसिया में करके हम देखते हैं। और एक सेवक के रूप में, सेवक हम किसको देखते हैं, केवल पास्टर होता है करके हम देखते हैं। नो, जब चर्च की बात, हम जब कलीसिया में आते हैं, हम सब सेवक है करके हम देखते हैं। सब परमेश्वर के लिए हम भागते हैं, या फिर उसके आराधना के लिए, या फिर उसकी महिमा के लिए, उसके राज्य के लिए हम दौड़ते हैं करके। इन सारे बातों को हम देखते हैं। जो लोग ने परमेश्वर को अपनाया उस समय बपतिस्मा को लिया, 3000 लोग थे, और वो लोग सारे लोग ऐड हुआ करके हम देखते हैं। ऐड होते समय में अर्ली चर्च जो पहले की कलीसिया थी, वो लोग जो सही या फिर अच्छे लोग या फिर नहीं थे, केवल चर्च में आने के लिए आते थे, या फिर जो परमेश्वर का जो लॉ था, जो कानून था, उसको मानने के लिए आते थे करके हम देखते हैं। लेकिन जब पवित्र आत्मा आने के बाद, यीशु मसीह को एक्सेप्ट करने के बाद, जो उन्होंने एक्सेप्ट को किया, जो उनका बदलाव आया, वो टोटली अलग था करके हम देखते हैं। पहला सैमुएल 16:7 वचन कहता है वहां पर, मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है करके। हम चर्च में आते हैं तो हम एक दूसरे को शायद हम बाहरी रूप से देखते होंगे, या फिर बाहर रहते समय हम बाहरी रूप से देखते रहेंगे, लेकिन परमेश्वर यहाँ पर कहता है कि मैं आपके मन को देखता हूँ। जब हम कलीसिया में आते हैं, किस तरह से आराधना को करते हैं, वचन को सुनते हैं, उसकी आराधना को करते समय में परमेश्वर हमारे मन को टटोलता है करके हम देखते हैं, हमारे मन को द्वार को खोलता है करके हम देखते हैं। उस समय में भी जितने लोग ने पवित्र आत्मा को महसूस किया, अपने मन को देखा करके देखते हैं परमेश्वर ने। उनकी जो हालत थी, परमेश्वर उस हालत को नहीं देखा, जो जैसे थे वैसे परमेश्वर सभी को आशीषित किया करके हम देखते हैं। आखिरी बात कहकर से समाप्त करना चाहूंगा, गॉड चर्च फॉलो द राइट प्रोग्राम करके, जो ದೇವರ ಆಲಯ ಸರಿಯಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತದೆ। जो प्रोग्राम्स आज के समय में होता है, जो हम लोग करने जा रहे हैं, वो इसलिए करते हैं ताकि जो लोग दूर गए वो लोग अट्रैक्ट करके हम लोग वापस ला सके। बहुत सारे कार्य करते होंगे, लेकिन क्या उस कार्य में हम पवित्र आत्मा को महसूस करते हैं, या फिर कोई फ्रूटफुल है, मीनिंगफुल है? इस सारे बावजूद नहीं होने के बाद भी हम उस कार्य को करना चाहते हैं, उस प्रोग्राम्स को करना चाहते हैं, उस समय में हम देखते जाएंगे द चर्च वर्शिप टुगेदर एज अ फैमिली। तब उस समय में, वो काल के समय में जो कलीसिया में इकट्ठा होते थे, सभी लोग एक परिवार की तरह परमेश्वर की आराधना करते थे, और जब काम करते थे टीम होकर काम करते थे करके हम देखते हैं, और जब चलते थे तो एक दोस्त की तरह चलते थे करके हम देखते हैं। वो कलीसिया की बात ऐसे थी करके हम देखते हैं। अपने आप को जब परमेश्वर की वचनों को सुनते थे, वो लोग साथ में रहकर परमेश्वर की रोटियों को तोड़ते थे, जब साथ में बैठकर वो लोग प्रार्थना को करते हैं। इन सारे बातों को परमेश्वर के द्वारा उन्हें अगुवाई करता था, यूनाइट करता था करके हम देखते हैं। द अर्ली चर्च फॉलोड अ प्रोग्राम दैट एम्फसाइज्ड स्पिरिचुअल ग्रोथ करके हम देखते हैं। जो भी प्रोग्राम्स कार्यक्रम होता था,
उस समय के काल में, उस समय एक स्पिरिचुअल, एक आत्मिक बढ़ाता करके हम देखते हैं। लेकिन आज के समय में कुछ भी हम कर ले, जो भी हम करते, क्या उसमें आत्मिक रीति से हम बढ़ पाते हैं, या फिर जिस चीज के लिए हम करते हैं उस चीज में परमेश्वर को बढ़ाई करते हैं, या फिर हम आत्मा में बढ़ते करके, इस बात को सोचना बहुत जरूरी है। इब्रियों 10वां अध्याय 24 और 25 वचन इस तरह से कहता है कि तुम चिंतित रहो, सोचो, कंसिडर करो, क्यों चिंतित रहना चाहिए, क्यों हमें परेशान होना चाहिए, इसलिए क्यों प्रेम एक दूसरे से करने के लिए, जो अच्छे कार्य करने के लिए, और जो मिलने का समय होता उस समय में हर दिन मिलते थे। आज केवल शायद हम संडे मिलते हैं, तो संडे मिलना भी, वो मिलना कंटिन्यू रहना चाहिए, उसे ब्रेक नहीं करना चाहिए करके बताती है हमें परमेश्वर। यहाँ पर वचन बताती है कि हम एक संडे आएंगे, 3 संडे नहीं आएंगे, लेकिन वो हमें ब्रेक लाता है करके हम देखते हैं। जो हमें फेलोशिप हमारे कलीसिया के साथ में बांधना है, वो फेलोशिप हम नहीं बांध पाते करके हम देखते हैं। मॉडर्न चर्च और आदिकाल की चर्च में बहुत फर्क आया करके हम देखता है। इसलिए परमेश्वर बताता है हमें, जो कलीसिया को हमने बांधा है, जो कलीसिया दिखने में बहुत खूबसूरती है, लेकिन हमारा मन खूबसूरत नहीं है करके। जो हमारा मन होना चाहिए वो आज हमारा मन नहीं है। जो पवित्र आत्मा, जो मिराकल, जो हीलिंग्स को जो हम पहले देखते थे, वो आज हम नहीं देख पाते। क्यों हम अपने आप को तैयार नहीं किए, या फिर उस तरह से परमेश्वर के आलय को हम इस्तेमाल करना चाहिए, यूज करना चाहिए, या फिर उस तरह से हम इस्तेमाल नहीं कर रहे करके हम देखते हैं। तो इस समय में हम अपने आप को कहां पर रखते हैं, कौन सी आलय में आकर हम मॉडर्न चर्चेस को फॉलो करते हैं, या फिर उस आलय को करना चाहते हैं जो पवित्र आत्मा उन लोगों के ऊपर उतर कर आया था, आज वही पवित्र आत्मा हम पर उतर कर आया है। ये हम प्रार्थना करें, या फिर ये कहे कि नहीं, जो चल रहा है वही चलने दो, हमारा कलीसिया जैसा है वैसे ही रहने दो करके, ये हम सोचे कि आप पर निर्भर करता है करके। आए हम प्रार्थना करें। ಅನುಭವವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಂತಹ ಪರಮ ಪ್ರೀತಿಯ ದೇವರ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆದಿಕಾಲದ ಆಲಯದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ, ಆದಿಕಾಲದ ಆಲಯದ ಕಾರ್ಯಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ನಾವು ಕೇಳಿರುವಾಗ ತಂದೆ, ನಮ್ಮ ಜೀವಿತಗಳನ್ನು, ನಮ್ಮ ಸಭಾ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಸ್ವಾಮಿ ಆದಿಕಾಲದ ಸೇವೆಯ ಬಾಧೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ನಾವು ಮಾಡಿಕೊಡುವ ಹಾಗೆ ನೀವು ನಮಗೆ ಸಹಾಯವನ್ನು ಒದಗಿಸಿಕೊಡು. ಈ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ನೀವು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡು. ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬೇಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೊಡುವ ಹಾಗೆ ಸಂಗೀತಗಳಲ್ಲಿ 100ನೇ ಸಂಗೀತವನ್ನು ನಾವು ಹಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ. ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೆ ಹೋಗಿ ದೂರದ ಸಂಗೀತ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾದ ಶಿಲುಬೆ. ಆಶ್ಚರ್ಯವಾದ ಶಿಲುಬೆ ಕಟ್ಟಿಟ್ಟು ದೃಷ್ಟಿಸಿದರೆ ಈ ಲೋಕದ ಮಹಾತ್ಮವು ಚಾಟವಾದನು. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಒಬ್ಬನೇ ಅಮೂಲ್ಯ ನನಗೆ ನಾನಾತನು ಕಾಡ್ಲಾರೆ. ಭಾಗ್ಯ ಶೂನ್ಯವೇ ದೇಹಾತ್ಮ
सब लोग बैठिए। ಪ್ರಕಾರ ನಮ್ಮ ಭಾನುವಾರದ ಆರಾಧನೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ 7:30 ಗಂಟೆಗೆ ನಡೆಸಲ್ಪಡುವುದು. ಮಧ್ಯವಾರ ಆರಾಧನೆ ಕೂಟ ಪ್ರತಿ ಗುರುವಾರ ಸಂಜೆ 7:30 ಗಂಟೆಗೆ ನಡೆಸಲ್ಪಡುವುದು. ಶುಕ್ರವಾರ ಸಂಜೆ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಹಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಕೂಟ ನಡೆಸಲ್ಪಡುವುದು. ಪ್ರತಿ ಶನಿವಾರ ಸಂಜೆ 8 ಗಂಟೆಗೆ ಯವನಸ್ಥರ ಕೂಟ ನಡೆಸಲ್ಪಡುವಂಥದ್ದಾಗಿದೆ. ಬುಧವಾರ ಆರಾಧನೆ ಕಾಣಿಕೆ ₹1,075. ಮಿಡ್ವೀಕ್ ಆಫರಿಂಗ್ ₹360. ಮಧ್ಯವಾದ ಆರಾಧನೆಯ ಕಾಣಿಕೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಕಾಣಿಕೆ ₹1,000. ನಾಳೆಯ ದಿವಸದಿಂದ ನಮ್ಮ ಆಲಯದಲ್ಲಿ ಸಂಜೆ 4 ಗಂಟೆಯಿಂದ 6 ಗಂಟೆವರೆಗೆ VBS ನಡೆಸಲ್ಪಡುವಂಥದ್ದಾಗಿದೆ. कल के दिन से शाम का 4 बजे से लेकर हमारे चर्च में VBS रहेगा, बच्चों के लिए VBS रहेगा। तो जितने भी हमारे चर्च में 15 साल से भी कम 15 साल के कम 8 साल से लेकर 15 साल के जितने भी बच्चे हैं, आपके बच्चे परिवार में अगर होंगे तो आप लोग VBS में उनको भेजने के लिए मैं आपसे विनती करूँगा। हमारे बच्चे ने पड़ोस के बच्चे भी रहेंगे, पड़ोस के बच्चे को भी जो है हम लोग VBS में लेकर आ सकते दे सकते हैं, लेकिन जो भी पड़ोस के बच्चों को लेकर आएगा उनका ही जिम्मेदारी रहेगा पड़ोस के बच्चों को सुरक्षित अपने घर तक पहुँचाने का। ठीक है, इस बड़े जिम्मेदारी के साथ में दूसरे के बच्चों को लेकर आपको आना है, लेकिन कंपलसरी हमारे चर्च के बच्चों को जो है चर्च में आना है, VBS में आना है। ठीक, सोमवार से लेकर शुक्रवार तक जो है VBS रहेगा, उसमें हमको लेसन जो है सिखाया जाएगा। तो अभी मुझे पता नहीं कि कितने बच्चे आने वाले हैं। ओके, ये सब तक VBS होगा, पूरा ट्रायल होगा। ट्रायल मतलब हम लोग सिर्फ जांचेंगे कि कितने बच्चे आते हैं और हम लोग क्या क्या उनके लिए कर सकते हैं, ताकि अगले साल में जो हम लोग अच्छी तरह से तैयारी करें। तो ये ट्रायल बेसिस में होगा। तो मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करूँगा अपने बच्चों को भेजो, और साथ ही साथ आप लोग का रिलेटिव्स लोग रहेगा, संबंधी लोग रहेगा जो दूसरे चर्च के हैं या वो लोग आते होंगे आप, तो उनको भी जो है आप लोग VBS में लेके आ सकते हैं। ये 5 दिनों में जो है स्नैक्स होगा। अभी मुझे पता नहीं कितने बच्चे आएंगे, कितना स्नैक्स जाएगा, कितना खर्चा होगा। ठीक है, उससे पहले ही जो है हम लोग को स्नैक्स के लिए तैयारी करना है। तो 5 दिन के लिए 5 लोग मुझे जो है स्पॉन्सर्स चाहिए, 5 स्पॉन्सर्स चाहिए। कितना अमाउंट रहेगा मैं आप लोगों को बताऊँगा, कल ही बता पाऊँगा, बच्चे आने के बाद ही बता पाऊँगा। तो कम से कम 1,000 रुपया होगा, 1,000 रुपये से लेकर 2,000 3,000 वटेवर, अभी मैं कुछ बोल नहीं सकता। ठीक है, तो 5 दिनों का स्नैक्स आपको देना है। तो कौन देगा? सोमवार का स्नैक्स जस्ट सोमवार का स्नैक्स देगा जेकब। मंगलवार का स्नैक्स एक बड़ा संजय ने, इससे पहले अपना यीशु ने भी बात बताया था। यीशु बुधवार का कोई लिख के ले रहा है क्या? और ये VBS का इंचार्ज हमारा जॉनसन रहेगा। मैं रहूँगा लेकिन जॉनसन को मैं ट्रेन करूँगा। पहला जॉनसन, दूसरा जेकब, तीसरा यीशु बुधवार, चौथा दिन का तीसरा है संजय उठाएगा, संजय 14 दिन, 5वां दिन देवदास, 5वां दिन का देवदास करेगा। 6वां दिन जो है हम लोग बच्चों को पुलाव खिलाएंगे। ठीक है, स्नैक्स में पुलाव खिलाएंगे। पुलाव कौन देगा? पुलाव जस्टिन पुलाव। ओके, तो इसके अलावा हमारा जो बच्चों के लिए स्टेशनरी होगा, बुक्स होगा, पेंसिल होगा, पेन होगा, सब खर्चा आने वाला है। तो उसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊँगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। यस, ठीक है, यूथ लोग आप लोग वॉलंटियर्स करके आप लोग आ सकते हैं। संडे स्कूल के टीचर्स 4 लोग मैंने चुना हुआ है। ठीक है, तो आप लोग एज अ टीचर 4 लोग रहेंगे।
बाकी वॉलंटियर्स आप लोग आ सकते हैं। मुझे इतना ही है कि 4 आने का मुर्गी 12 आने का मसाला नहीं होना चाहिए। 4 टीचर 6 वॉलंटियर्स और बच्चे 5, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग कोशिश करो, वॉलंटियर्स की कोशिश करो। वॉलंटियर्स का क्या काम है? बच्चों को चर्च में लेके आने का, और जितना हो सके उतना संख्या में बच्चों को चर्च में जमा करने का, उनका देखभाल करने का, सुरक्षित उनको अपने अपने घरों में पहुँचाने का। समझा आप लोग? राजीव समझा? गुड, वेरी गुड। तो आप लोग अपना जिम्मेदारी अच्छा निभाने का, और जितने बच्चे आएंगे वो आप लोग की कोशिश के ऊपर है, मेहनत के ऊपर है। इसके अलावा मैं मराठी भैया को भी बोलूँगा, उनके चर्च में अगर बच्चे वो देख सकते हो अपन देखने के लिए, तो साथ ही साथ तेलुगु भैया को भी मैं बोलूँगा। लेकिन देखो, मಕ್ಕಳು ಬರ್ತಾರ, ಅವ್ರದ್ದು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಂಥ जवाबदारी का नंबर। जब वो लोग आते हैं, आने के बाद घर तक पहुँचने तक उनका जो देखभाल करने का जिम्मेदारी रहता है, तो उसके लिए आप लोग को तैयार करना है। तो हो गया, हमारा शेड्यूल फिक्स है, और अभी मैं आप लोग को वीडियोस भेजूँगा। सुनो, ठीक है? तो आप लोगों को प्रैक्टिस करना है, घर पे कोई मत जाओ। कल के लिए एक्शन सॉन्ग, थीम सॉन्ग और एक्शन सॉन्ग आप लोगों को प्रैक्टिस करना है। बाकी लेसन्स आप लोगों ने पढ़ा है, तैयार किया हुआ है। बच्चों जितने आएंगे उसके हिसाब से आप लोग क्लास में होंगे। ठीक है, उसके बाद में मैं एक क्लास लूँगा। 2-3 घंटे का वीडियो हम लोग डेली हम लोग वाइंड अप करेंगे। बर्थडे किसी का है, किसी का बर्थडे या था सेलिब्रेट करने वाले, शादी का सालगिरह किसी का है, ओके नहीं है तो हम सब समय खड़े हो जाते हैं, हम लोग प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ। ನಮ್ಮನ್ನು ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಂಥ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ತಂದೆ, ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೀನು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ವಾಕ್ಯಗಳಿಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಕೃತಜ್ಞತಾ ಸ್ತೋತ್ರಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ। ಸಭೆಯು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆದಿ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು, ಆದಿ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಭೆಯು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿ ನಿನ್ನನ್ನು ಆರಾಧಿಸುವಂಥ ಸಭೆಯಾಗಿ, ನಿನ್ನನ್ನು ಸೇವಿಸುವಂಥ ಸಭೆಯಾಗಿ, ಸುವಾರ್ತೆಯನ್ನು ಸಾರುವಂಥ ಸಭೆಯಾಗಿರುವಾಗ ಅಂತ ಸಭೆಯನ್ನು ಸ್ವಾಮಿ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಈ ಆಲಯದ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡುವ ಹಾಗೆ ನೀವು ನಮಗೆ ಸಹಾಯವನ್ನು ಒದಗಿಸಿಕೊಂಡು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಾಳೆ ದಿವಸದಿಂದ ಯಾವ ನಾವು ಹೀಗೆ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವು ನಿನ್ನ ದೈವಿಕ ಸಹಾಯವನ್ನು ನಡೆಸಲಿಕ್ಕೇನು ನಮಗೆ ದಯಪಾಲಿಸಿಕೊಡು। ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ನಾವು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಪಂಬಿನವರ ತಂದೆ ಸಲುವಾಗಿ। ಅವರು ಭಯಂಕರವಾದಂಥ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಯಲ್ಲಿರುವಾಗ ಆ ಮಗನನ್ನು ನೀನೇ ಕರ್ತನಿನ ಗಾಯವುಳ್ಳ ಕರಗಳನ್ನು ಮುಟ್ಟಿ ಆತನನ್ನು ಸ್ಪರ್ಶ ಮಾಡಿ ಆತನನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸಿ, ಆತನನ್ನು ಸ್ವಸ್ಥಪಡಿಸಿ। ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಸ್ವಾಮಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸತ್ಯಮ ಸಲುವಾಗಿ ಕೂಡ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ। ನಮ್ಮಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡು, ಆಕೆಯ ಕಾಲುಗಳಿಗೆ ಕೈಗಳಿಗೆ ಬಲ ಕೊಟ್ಟು ತಾಕತ್ತು ಕೊಟ್ಟು ಮಗಳು ಸ್ವಸ್ಥವಾಗಿ ಆಲಯದಲ್ಲಿ ಬಂದ ಮಹಿಮೆಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಸಾಕ್ಷಿ ನಡೆಯುವಾಗ ಮಗಳನ್ನು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡು। ಅದಲ್ಲದೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಸಲುವಾಗಿ ಕೂಡ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ। ಆ ಮಗಳಿಗೆ ಹೊಸದಾದಂಥ ಬಲ ಶಕ್ತಿ ಕೊಟ್ಟು ನಿನ್ನ ಆಲಯದಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಿನಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ನಿಂತುಕೊಳ್ಳುವ ಅದ್ಭುತ ಕ್ರಿಯೆ ನಾವು ಅವಳ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ದಯಪಾಲಿಸಿಕೊಡಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ। ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅರಿಕೆಗಳು ಕಾಣಿಕೆಗಳನ್ನು ತಂದು ಕೊಡುವಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕುಟುಂಬಗಳನ್ನು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿ, ಮಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿ, ಎಲ್ಲ ಘನಮಾನ ಮಹಿಮೆ ನಿನಗೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಈ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಯೇಸುವಿನ ಪರಿಶುದ್ಧ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ। ಈ ದಿವ್ಯವಾದ ಪ್ರೀತಿಗೆ ದೇವರ ಪ್ರೀತಿ, ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಕೃಪೆ, ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನ ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆ ಸಹವಾಸ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಇಂದಿಗೂ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ನೆಲೆಯಾಗಿರಲಿ। ಆಮೆನ್।
ಒಳ್ಳೆ ದೇವರು, ಕೃಪೆಯುಳ್ಳ ದೇವರು, ಸಹೋದರಂತ ಜಾನ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಆರೋಗ್ಯ ಭಾಗ್ಯಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡೋದು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಬೇಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಾವೆಲ್ಲ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುವ ಒಂದು ಸಾಕ್ಷಿ, ಒಂದು ಗವಾಹಿಯನ್ನು ನಾವು ಕೇಳುವವರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಮಾಡಿರುವ धन्यवाद देता आज के दिन के लिए परमेश्वर, क्योंकि मेरे जीवन में यीशु मसीह ने बड़ा कार्य किया है। परमेश्वर मेरा बेटा 2 महीने से क्रूस पे था और उसको स्वयं नहीं सकते थे। वो तो परमेश्वर ने बड़े बड़े रिपोर्ट किया, बड़े बड़े हॉस्पिटल में हमने रखा, लेकिन उसका कुछ अच्छा रिपोर्ट आया नहीं। लेकिन परमेश्वर ने लास्ट में उसका ये पत्नी का बाहर एक रिपोर्ट किया, और रिपोर्ट नॉर्मल है। इसमें कोटि कोटि प्रभु मैंने रात को 3 बजे उठ के मैं प्रभु से मांगती थी, झगड़ा करने के रिपोर्ट नॉर्मल आना चाहिए। प्रभु ने ऐसा ही किया, वो प्रार्थना का उत्तर दिया। उसका शादी है, लेकिन शादी ये महीने में तो अगला महीना होगा, लेकिन परमेश्वर ने मेरे बेटे को पूरा बीमारी से जय दिया। इसके लिए प्रभु को धन्यवाद। शादी वही दिन में होगा जिस दिन में निर्णय किए। परमेश्वर के नाम को धन्यवाद। अगर किसी को इसी तरह से गवाही देना है ना, तो मेरे को आप एडवांस में चिट्ठी में लिख के बोल सकते हैं, ऐसा डायरेक्ट आके मेरे को बोल सकते हैं, ठीक है। थैंक यू। हर संडे हम लोग गवाही सुनना चाहेंगे इसी तरह से। किसी को भी गवाही देने का मेरे को आगे आके बताने का, ठीक है। गॉड ब्लेस यू। आप सब लोग जा सकते हैं।